साइन रूल तो कल पढ़ा था। जी बेटा, अभी सुनने पहले तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, सो इट इज अवर ट्रिग्नोमेट्री लेसन टू। Yesterday was lesson number 1. It is lesson number 2, and lesson number 2 is for not a right angled triangle, not a right angled triangles. Now remember that in not a right angled triangle, you have two rules, only two rules. Only two rules are there. The first rule is sine rule, and the second rule is cosine rule. These rules are designed for the not a right angle triangle. So first of all, we are going to begin the show with the sine rule. Sir, Yes, can these also apply to right-angled triangles? yes, they can also be applied to the right angle triangle. Okay. Yes, sir. Uh, Thank you. Now, sine rule. Beta, sine rule is what? Sine rule is a ratio of two angles and two sides and two sides. Like let's suppose, let me draw a triangle here, and the name of this triangle is, let's say, triangle ABC. This is not a right angle triangle, so side opposite to angle A will be small a, side opposite to angle B would be small c, side opposite to angle C would be small c. So we will be taking ratios only. It means that you can write like sine A divided by small a equals sine B divided by small b equals sine C divided by small c. Or you can flip the rule, a divided by sine A, b divided by sine B, and c divided by sine C. It looks scary, but this is very easy. How? Just look at me for a while and let me use this rule, and you will get the idea that what I'm saying to you. Okay, don't you worry about that. Just give me a second here. Okay, you can see that there is a triangle here in front of you, and the name of this triangle is, let's suppose, ABC. ABC is the name of the triangle. A to B is 21 centimeters. This is 84, and this angle is Y. So this length is 32.4 centimeters. Now, beta, you can see that examiner is asking me calculate Y. That is the requirement, calculate Y. So now, beta, don't you worry about that. You can see one thing, that Y is facing 21 and 84 is facing 32.4. Y is an angle. I have to write that this is capital C. So this is definitely small c. This is capital B. So this is capital small b. So I have to write sine C divided by small c, which is equals to sine B divided by small b. Mera bacha, you all can see one thing, that I have in this question. Sine B is available, sine small c is available, small b is available. I can find out sine C with the help of some calculations. I know that this is sine C, which is equals to sine C. The name of the angle is sine Y. Small c is 21. Sine B is sine 84, and small b is 32.4. So 21 will go to the right side. So sine Y is equals to 21 times sine 84 divided by 32.4. I don't need sine Y. I need Y, which is my angle. It is equals to sine inverse of the bracket of the right side, which is 21 times sine 84 whole divided by 32.4. याद रखें, ये साइन रूल को साइन रूल्स जो हैं वो ज्यादा इजी हैं as compared to the right angle triangles के. All you need to get a very good grip on the rules, and you all need two good questions to practice. Okay, एक मिनट यार, ऐड आ गया फिर. सर जी बच्चा. सर मेरा एक सवाल है, ये साइन और इनके साथ जी जी बोलें. आप जरा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल? एक मिनट जरा, ये क्वेश्चन जरा खत्म हो जाए. ओ सॉरी। ये क्वेश्चन मैं खत्म कर दूं, फिर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ. ठीक है. ओके, चेक.
So it would be shift and sine inverse fraction, which is 21 times sine 84, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, डिवाइडेड बाय 32.4. अब ये बड़ी ब्रैकेट को भी बंद करना ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना हो. सो एंगल y is equals to 40.13. You have to leave the answer till one decimal place. Y is your angle, so 40.1 degree is the answer for this question. That's how you can find out the unknown side without even bothering about the perpendicular base or hypotenuse. Understood everybody or not? जी, Yes, sir. easy question Understood, था. sir. Yes, सर बच्चा. आप इसको कैलकुलेटर पे दोबारा करके दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें, पहले शिफ्ट और साइन का बटन दबाया, साइन इनवर्स आ गया, फिर फ्रैक्शन का बटन दबाया. अब मैंने ऊपर लिखना है 21, फिर लिखना है साइन 84 और ब्रैकेट को किया बंद, डिवाइड पे लिखा 32.4 और 1 मिनट, 0.4 मैंने नहीं लिखा, 0.4 और ब्रैकेट को किया बंद और इक्वल दबा दिया, तो 40.135 मेरे पास आ रहा है. ठीक है, जी सर। ठीक है. एक 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 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर ताकि आइडिया डेवलप हो जाए कि यूज कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं. जरा प्लीज पे अटेंशन. लेट मी ड्रॉ अ क्वेश्चन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. साइम, कैन यू सी दैट? यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल. थोड़ा सा वेट करें, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ. ठीक है. फॉर एग्जांपल, Okay, दिस sir. इज ट्राइंगल एक्स वाई जी, एग्री, and this angle is 40 and this angle is 46. Examiner is asking you to find out x and this is 20 centimeter. So beta, all I need is to get to the unknown part. So beta Sime, I can see that out of three angles I have two angles available. Can I find out angle z by subtracting these two from 180? बिल्कुल. So 180 minus 40 minus 46 is 94. Do you agree with me or not? Agreed. Okay, so I want to find out x. So Yamna, x divided by sine 46, which would be equals to 20 divided by sine 94. देखो एरो बन रहे हैं ना पूरे. तो हम x को अब ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो अननोन है और एंगल नोन है, तो इसीलिए एंगल नीचे चला जाएगा. ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय साइन 94. ठीक है यमुना बेटा. पिछले केस जी में सर। आपने देखा कि एंगल अननोन था, इसीलिए एंगल न्यूमरेटर पे था. इन दिस केस यू कैन सी दैट द साइड इज अननोन, तो इसीलिए मैंने साइड को ऊपर रखा. और मैं अलजबरा से आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग जो एंगल है अननोन है उसको ऊपर ही रखा करो. ठीक है, याद आया मेरी बात? अब वहां से साइन 46 यहाँ पे आके आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई. अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है, कोई साइन इनवर्स लेने की जरूरत नहीं. 20 मल्टीप्लाई विद साइन 46, ब्रैकेट क्लोज करा करो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के बाद साइन 94 वदान ब्रैकेट क्लोज्ड. सो द आंसर इज 14.42. 14.42. So this is length till three significant figures. So 14.4 centimeter is the answer. जी, अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? साइम समझ आइए बेटा. जी सर. सर Yes, मैं sir. सिर्फ एक चीज पे कंफ्यूज हूँ सर. किस चीज पे बेटा? सर ये आपने एक बात की है कि पिछली बार आपने अननोन को नीचे लिया था ना, Uh, इस बार आपने अननोन को ऊपर ले लिया, तो सर वो चीजें जब चेंज करते हैं डिवीजन में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता. मैं अभी आपको एक ट्राई करवाता हूँ, आप जरा मुझे बताओ. मैं कोई ट्रायंगल को नाम नहीं दूंगा, ठीक है? मैं कोई नाम नहीं दूंगा, मैं आपको कहूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ मुझे. ठीक है, रेडी हो? जी सर. तो दिस इज y and this is 10 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 64. चलो अब जरा मुझे रूल बना के बताओ, क्या इसमें साइन रूल लगता है? देख लो, लग रहा है कि नहीं? यस सर, लग रहा है. लग ये रहा है. भी लग रहा अब है. आप मुझे बताएं क्या लिखूं? सर आप ये लिख ले y डिवाइड बाय 10. नहीं, साइन y बोले, एंगल है वो. साइन ओह y डिवाइडेड साइन बाय डिवाइड बाय 10. 10 इक्वल्स. एंड सर फिर 15 डिवाइड बाय 64 लिखते हैं. नहीं नहीं नहीं, साइन लिखना, एंगल लिखना पड़ेगा. सामने आपने ओह साइन y लिखा हुआ यही समझ, बस यही समझना था कि है. पहले हाँ जो जी, ऊपर लिखा है वो दूसरी बार भी वही यस. चीज ऊपर. ठीक है एंगल सर. ऊपर है तो एंगल ही ऊपर रहेगा. ठीक है. सही है, बस यही कंफ्यूजन साइन थी सर. साइन 64 डिवाइड बाय 15, तो बेटा ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद साइन 64 divided by 15 and then we take sine inverse. So sine inverse of the right side. कैलकुलेटर में बिल्कुल आखिर में डालना है ताकि मेथड के पूरे मार्क्स आपको पेपर में मिले एग्जामिनर की तरफ से. ठीक है,
क्योंकि ये एंगल है तो शिफ्ट एंड साइन इनवर्स। यमुना गौर कर लो, फ्रैक्शन 10 मल्टीप्लाई विद साइन 64 ब्रैकेट होगा क्लोज, डिनोमिनेटर पे आ गया 15 और यहाँ पे हो गया ब्रैकेट क्लोज एंड द आंसर इज 36.81। 36.81 Laluna, do I have you in the class? Which is 1 decimal place. So 36.8 degrees is the answer. Understood everybody or not? यस सर। Yes or no बेटा, जी सर। समझ आया Yes, सबको? sir. Understood, sir. Yes, sir. Any confusion so far? No, sir. नहीं सर। Can I proceed? Can I proceed to the cosine rule? Yes, sir. If I'm done with बिल्कुल the सर। cosine rule, so then we can easily practice past paper questions. ठीक है, हम past paper questions practice कर सकेंगे, ठीक है? Yes, So sir. let ठीक है me सर। proceed. Let me proceed with the cosine rule. आपको cosine rule समझा दूं पहले। Cosine rule. Yamna, beta, I wrote that the sine rule is for the two sides and two angles. Agree? दो sides और दो angles लेते थे, आपने देखा है ना? यहाँ पे भी देखो दो angles दो sides हैं, यहाँ पे भी देखो दो angles दो sides हैं, यहाँ पे भी देखो दो angles दो sides हैं. Yes or no? Yes, sir. Cosine rule is a rule having three sides and one angle. Understood? Having three sides Yes. and one angle only. So what I'm gonna do is, एक मिनट जरा मुझे दें, जरा मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे जरा थोड़ा सा मैं मोबाइल से जरा ज्वाइन कर लूँ कि मुझे आप लोगों के बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आप लोग उधर क्या कर रहे हैं, आइडिया होना चाहिए मुझे। खुशी बेटा तुम क्लास में हो? जी सर। मेरा पुत्र ये लिंक का क्या रोला हो जाता है तुम्हारे साथ बेटा? सर मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा शायद आपको लिंक चाहिए था। नहीं सर। Recording in progress. All right everybody. So बस अब मुझे मेरे सामने जो है सबको, बेटा ये जूम यूजर किसकी आईडी है? बेटा ये जूम यूजर किसकी आईडी है? बेटा हाथ खड़ा करने से मुझे क्या पता चलेगा? सर मेरी 1 मिनट में चेंज करती हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बस ठीक है, बस सही है। माइक ऑन करके भी बोला जा सकता है ना खुशी? सॉरी ओके, सर, आज वो फोन पे नहीं हूँ तो कंफ्यूजिंग नो सा है। नो 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 इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। अच्छा जी, कोसाइन रूल, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई 90 का एंगल नहीं है। सो याद रखें अवनीश, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज Yes, स्मॉल sir. बी and this is small c. Okay, so let's begin the show. So beta, the first type of the cosine rule is for a square. Okay, so I'm going to make it. So वदान, यहाँ पे a square लिखा है तो यहाँ पे कोने पे लिख दूंगा cos a. Okay, ओके क्या सर। लिखूंगा? cos cos a क्या a। लिखूंगा? यहाँ पे हम cos लिख a। देंगे cos a. Understood? So remaining two sides are b square प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए। अब ये cos ऑफ ए को थोड़ा सा मुझे इधर लेकर आना पड़ेगा उठा के। ठीक है यमुना? जी यमुना, सर। ये cos ए को जरा मैं दोबारा लिखता हूँ जरा यहाँ पे, क्योंकि मैंने गलती कर दी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए। अब देखें ये याद करने का क्या तरीका है, जरा याद करना। जिस साइड के लिए आपको साइन रूल बना रहे हैं उसका एंगल सामने लिखना है। अंडरस्टूड? और बाकी के दो को दरमियान में लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc करके। एग्जाम्पल के तौर पे एक दफा दोबारा बनाऊंगा ताकि आइडिया हो जाए। व्हाट इफ माय स्मॉल बी इज अननोन, सो आई विल राइट बी स्क्वायर। तो अब सामने क्या लिखूंगा बेटा? cos b। a स्क्वायर वेरी गुड, प्लस वो यहाँ पे a आएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। ठीक है यमुना? जी सर। Ayla, if I make this for c square, what would be the cosine rule? Ayla, what would be the cosine rule? Sir, a square plus b square minus 2ab. Cos of C. Good job. Okay, so this is basic thingy.
सो लेट मी मेक अ ट्राइंगल विद अ डिफरेंट नेम्स नाउ। अब मैं डिफरेंट नेम्स देता हूँ जरा ट्राइंगल को, ताकि ट्राइंगल जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। एम एन ओ, so this is small o, this is small m, and this is small n। कोई ट्राई करना चाहेगा? anyone anyone who wants to try and check, देखिए ठीक है कि नहीं। अरसलान, सर एंगल कौन सा फाइंड करें आप? मैं भी अरसलान को जरा, अरसलान से पहले जरा फीडबैक ले लूं। अरसलान, सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था लेकिन फिर लीव हो गया, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था। चले आप बताएं। एम स्क्वायर के लिए बना रहा हूं, अभी आप ही बताओ अरसलान। एम स्क्वायर के लिए कोसाइन रूल बना रहा हूं, तो बताएं जी, क्या लिखूं इक्वल टू की राइट साइड पे। एम स्क्वायर, एक मिनट। तो एम स्क्वायर लिख दिया है, इक्वल्स। यस, एम एम स्क्वायर इक्वल टू ए टू, नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। खैर है, आराम से। चलो आप एक नजर देख लो। आलीन से पूछता हूँ मैं नहीं, इतनी सी देर। सी स्क्वायर। नो नो नो, एक मिनट, आलीन से मैं पूछता हूँ पहले। आलीन, आप सुनो आलीन को। सर एम स्क्वायर के बाद होगा एन स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर माइनस 2NO कॉस एम। ठीक है अरसलान, जरा गौर करो। ये एम था, एम स्क्वायर, तो इसके सामने हमने कॉस एम लिखना है और बाकी दो का स्क्वायर लेके -2 AB कर लेना है। ठीक है, जो आइडेंटिटी पढ़ते थे हम लोग, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी की तरह ही है। ठीक है Yes, sir. अरसलान, आप जरा ट्राई करें, एन स्क्वायर को ट्राई करें, एन स्क्वायर के लिए बनाएं। एन स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा एम पावर टू एम एम एम, स्क्वायर बोलते हैं। सॉरी, एम स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर वेरी गुड। -2m, नहीं, -2MO वेरी गुड। कॉज कॉस क्या होगा? एम, नहीं, एन। ओ ओ ओ, एन। सॉरी, एन। अब दोबारा ट्राई करो, ओ स्क्वायर के लिए ट्राई करो। ओ स्क्वायर इक्वल्स सो ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। प्लस एन स्क्वायर वेरी गुड। -2 एम एन एम एन, यस, कॉस कॉस ओ। ऑफ ओ। देखो अरसलान, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे देखो, ये दोनों लिखे हैं ना, तो यही दोनों इधर लिखने हैं। अंडरस्टूड? ओके सर। जी। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? किसी को ट्राई करना चाहेगा? जिसको समझ नहीं आई उसको ट्राई करवाता हूँ। एनीवन? No, sir. All clear. ऑलराइट, करूँ सो सर? आई थिंक वी कैन प्रोसीड। उमर, कैन आई प्रोसीड और ट्राई कराऊं? सर मैं करता हूँ एक। ओके चलें, एक आपको कराते हैं ट्राई। चलें जी, उमर को ट्राई कराते हैं। आप सब लोग भी अपनी कॉपी पे लिख के देखें कि आप लोग ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं जरा थोड़ा ट्राइंगल डिफरेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। पी क्यू आर, दिस इज स्मॉल क्यू, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल पी। उमर, पी के लिए बनाओ। पी स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर इक्वल्स सर आर 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 स्क्वायर स्क्वायर। प्लस क्यू स्क्वायर वेरी गुड। -2 आर आर क्यू, वेरी गुड। फिर कॉस पी। गुड जॉब। एक दफा और ट्राई करो। आर के लिए बनाओ। आर स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हाँ, -2 जल्दी जल्दी बोलो, ज्यादा मत सोचो। -2। आर आर क्यू नो नो, पी कॉस, क्यू। हाँ पी क्यू कॉस कॉस ऑफ आर आर। आर। खुशी, खुशी, जी सर। एक मिनट आप होल्ड करो। असफहान, बेटा क्यू स्क्वायर के लिए बनाओ। असफहान, असफहान, मुईद, सर एक मिनट जी। क्यू स्क्वायर के लिए बनाए बेटा, मुईद। अच्छा सर, क्यू स्क्वायर तो दूसरा हो जाएगा पी पी स्क्वायर, हम्म फिर आर प्लस आर स्क्वायर -2 पी आर हम्म और कॉस क्यू। वेरी गुड। जी, सबको समझ आया बेटा? कोई एक बच्चा है जिसको समझ नहीं आया तो फिर मैं उसको ट्राई करवाऊं?
हाँ अभी सर। क्वेश्चन करवाऊं एक? जी सर चलें, क्वेश्चन। लेट्स प्रैक्टिस अ क्वेश्चन नाउ। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो खुद ही आइडिया डेवलप हो जाएगा कि कितना समझ आ रहा है, फिर पास पेपर दिखा सकता हूँ। अदरवाइज मैं फिर आपको पास पेपर नहीं दिखा सकता, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। ओके। सर एक सवाल है सर। तो जी बेटा बोले, मैं इतनी देर क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप बोल दें। सर ये ट्रिग्नोमेट्री में बस इतने ही फॉर्मूलाज है? बस बस इतनी ही है, और कितने लाएं बेटा? ओके सर सर, तो बस अभी खत्म हो गया ना ट्रिग्नोमेट्री? बस सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर? ओ लेवल्स का खत्म हो गया। सर जी बेटा, व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा? दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन कैम्ब्रिज। Oh, all right. You are giving the paper of IGCSE, right? Yes sir, yes sir, I am. So this is not included in your exam paper, okay? Okay sir. So the requirement is find YZ. Find YZ. Okay. So beta, you can see that the question is in front of you. All you have to do is just look at the triangle very carefully, whether you can use the sine rule or not. I can see one thing. I cannot use a sine rule here because 79 is facing this side and this side is unknown. 10 is having no angle and 8 is having no angle. It means that I cannot use sine rule. I have to proceed the question with cosine rule because I have two sides available and I have one angle available and I'm bound to find out the third side. And I told you in the beginning that cosine rule is three sides and one angle. So what I'm going to do is I know that this would be my small x. So I have to make the cosine rule for small x. So Khushi, I would love to hear that if you tell me the cosine rule for small x. Okay, sir. X square is equals Mhm. y square plus Very z good. Very good. minus 2yz Very good. cos x. Cos x. Okay, now Khushi, please fill up the values now. X square is equals to No, x square is yz. Yz square is equals to 10 square 10 square. plus 8 square Very good. minus 2 bracket 10 bracket 8 cos 79. Cos 79. I don't need yz. I don't need yz square. I need yz. So yz would be equals to Khushi square root of the right side. Do you agree with me or not? Yes sir. तो आपने ये स्क्वायर रूट लिख के एक दफा दोबारा इसके अंदर ये लिखना है सारा, ठीक है यमुना बेटा? क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको डालेंगे कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकल आएगा, ठीक है बेटा? सर ये तो पेपर 2 में नहीं आ सकता ना ऐसे क्वेश्चंस? नहीं नहीं, ये नॉन कैलकुलेटर पेपर में आएगा और कैलकुलेटर वाले पेपर में आएगा। 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 10 ब्रैकेट 8, मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है मोहित? 79 cos 79 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स 11.5 11 पॉइंट yz is ये कोसाइन रूल के लिए कोई कैलकुलेटर वाला मेथड नहीं है, वो डायरेक्ट जो मोड वाला कुछ होता है? नहीं 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 11.6 और आपने लेंथ निकाली है, ठीक है मोहित? Sir, यप। may I answer the सर next question? 11.6 नहीं होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर ना 11.55 ओह आएगा अच्छा, 3 कैलकुलेटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ठीक। यस ओके जी अवनीश। May I answer the next question, sir? ओके जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी फिनिश माय लेक्चर फर्स्ट, ठीक है? Yes, sir. Okay, just wait a minute so that I can finish my lecture here. Okay. All right, everybody. You can see that there is a case here. Laluna, can you hear me loud and clear? Yes sir. Okay, so please turn on your mic for some time. Okay, don't close it. I hope Abdullah is sitting. जी सर। Okay, Abdullah, find angle B. Find angle ABC. Angle ABC. So Abdullah, जी सर। मेरा बेटा ये बताइएगा कि एंगल ABC कौन सा एंगल है? सर ABC ABC। Rectangle.
Angle ABC is which angle? Angle A, angle B or C? B. Very good. Okay. So सही है Abdullah, very good. It's right answer. Acha, अच्छा Abdullah, जी this is small b, agree? जी This बिल्कुल is small a, agree? यस This is small c, agree or not? यस अब्दुल्ला 3 साइड्स अवेलेबल हैं बेटा, एक एंगल निकालना है, तो इसका मतलब है कि आपको बी के लिए कोसाइन रूल बनाना होगा, एग्री? यस सर तो बताएं बेटा कोसाइन रूल बी स्क्वायर इक्वल्स। बी स्क्वायर इक्वल्स वो फॉर्मूला तो याद नहीं है मुझे अभी बेटा मैंने सबको प्रैक्टिस करवाया है, लालूना जरा इसकी हेल्प करो। A square plus C square minus 2AC cos of B. कॉस ऑफ बी। अब देखो बेटा अब्दुल्ला क्या किया है लालूना ने कि बी स्क्वायर को के सामने ही कॉस बी लिखा, ठीक है? जी और दो रहते थे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिया और -2AC दोबारा लिख दिया इनके साथ। समझ आ गई? समझ आई? जी सर समझ आ गई ओके, यस सर एक सर मिनट, अगर सी आगे लिख सी पीछे लिख लो और ए आगे। कोई फर्क मसला नहीं है। अब अब्दुल्ला जरा ट्राई करो बेटा दोबारा, स्मॉल बी के लिए बनाओ। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम्म, ए स्क्वायर प्लस सी वेरी गुड, स्क्वायर वेरी गुड। -2 ए बी AC. ए ए सी सी और फिर कॉस और फिर बी कॉस और बी, ठीक है जी। अच्छा, सर अब अब्दुल्ला जरा वैल्यूज बताएं मुझे। सर ए की है 22 एक मिनट अब्दुल्ला, ओके सर वी आर सपोज टू फाइंड एंगल हियर, एग्री? यस तो मेक कॉस बी सब्जेक्ट, आपने कॉस बी को सब्जेक्ट बनाना है पहले, ठीक है, ठीक ताकि एरर ना हो। तो अब्दुल्ला ए स्क्वायर वहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, एग्री और नॉट? जी सर अब मेरा बेटा ये चीज देखो, ये -2AC कॉस बी इस साइड पे रह गया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट विल गो देयर एज डिवीजन, ठीक है? माइनस करके यहाँ पे प्लस नहीं करना, ये नीचे आ जाएगा -2AC, ठीक है अब्दुल्ला? ठीक है सर अब इसमें वैल्यूज पुट इन करने का टाइम है, तो कॉस बी इज इक्वल टू, अब्दुल्ला स्मॉल बी की वैल्यू क्या है बेटा? 20 20 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है? 22 22 स्क्वायर माइनस और सी की वैल्यू 17 क्या है? स्क्वायर 17 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूं बोल दो जरा। -2 ब्रैकेट हाँ, 22 22, वेरी गुड। और फिर ब्रैकेट क्लोज पे ब्रैकेट सी सी है 17 और ब्रैकेट अच्छा देखो, अब देखो डरना नहीं, ये देखो ये दो, ये वैल्यू इसके नीचे लिखी हुई है और ये वैल्यू इसके नीचे लिखी हुई है, ठीक है? ठीक है सर शॉर्टकट, हमें cos b नहीं चाहिए, आई वांट टू फाइंड आउट cos इनवर्स, सो अवनीश cos will go there and it would be cos inverse of the bracket, agree? So we are supposed to write this thing in the Cambridge exam as well, so that this is m mark, understood? -2 into 22 into 17. Now b equals, now the game is of the calculator, Moeed, shift दबा के cos दबाओगे तो बेटा cos inverse fraction button, it is 20 square minus 22 square minus 17 square divided by -2 bracket 22 सर ये हम bracket, अभी एंगल फाइंड करे तो इसलिए हमने cos इनवर्स कर लिया yes बिल्कुल। तो ये So the answer is Moeed 60.088, एंगल 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड होता है, तो 8 के बाद क्या है बेटा? 0 के बाद क्या है? 8 है, 9 तो ये हो जाएगा, Sir, तो होगा 60.1 डिग्रीज। जी बच्चा। sir, I've done it a bit differently, and I don't think my answer is wrong. So I've first, I have kept it in the original form only. Which, Okay. um, Your answer is wrong. Do you know why? why, sir? Just and why I said so. Agree? Sir? Agree? You said that the correct answer is 109. Agree? Yes, yes, I did. Now, can you see one thing that look at the triangle, please? Agree? Yeah, sir, it's up to you. Yeah, this triangle has 22 the longest side. Agree? Yeah. And 22 will face the Oh, largest angle. Okay? uh, Got it? yes, sir, got it, sir. So 20 will not face the largest angle. It is 60 something. Agree? Yes, sir.
And can you see one thing? There is no big difference between 20, 22 and 17. Agree? Only 2-3 centimeter difference. Agree? Yes, sir. So there will be no big fluctuation of angles. Okay, you will not see big fluctuations of angles. Understood? Yes, sir. Understood. You got this idea that I got this angle as 60.1. So I know that the total angle in a triangle is 180. Agree? Yes. So this is very much common sense that the rest of the two angles is 120. Agree? Yeah. So we don't know that how much 120, 70, 50 or 40, 80. Agree or not? Yes, sir. Agree, sir. So please be careful with the signs. Understood? Oh, instead of putting -2, I put 2, sir. Yeah. So now we are in a state so that we can open a past paper booklet here and let's see that where we सर stand as a past paper. जी बच्चा, मैं सुन रहा हूँ. सर ये जिधर आपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनाया मुझे इधर से सही समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की। सब्जेक्ट मेकिंग की समझ नहीं आई. जी सर। अच्छा, मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आई होप आपको तब समझ आ जाएगी. ये अभी आ गया मेरे सामने कोसाइन रूल. ठीक है, नजर आ रहा है? पास्ट पेपर क्वेश्चन है एक. जी सर। अच्छा जी, जरा गौर करें प्लीज, सब गौर करें. मैं आराम से रीड करूंगा. द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ 3 सिटीज जेनेवा, बुडापेस्ट एंड हैम्बर्ग. अ प्लेन फ्लाइज टू जेनेवा टू हैम्बर्ग. जेनेवा से हैम्बर्ग जाता है प्लेन. The flight takes 2 hours and 20 minutes. It's time. This is 2 hours and 20 minutes. This is time. And the distance is 864 kilometer. I can see that. Agree, Yamna? 864 kilometers. Calculate the average speed in kilometer per hours. Okay. So first of all, I have to convert 2 hours and 20 minutes in hours. So it is 2 hours and 20 minutes. So how to convert this in calculator? Please check. 20. Sorry, it's 2. So 2 hours and E and G above button is the time button. So 2 hours and 20 minutes. 20 minutes. You can see that it is written in the calculator. Let me press equals to. Now press SND. It is 7/3, which is 2.33. So I Sir, will be using 2.333. sir, my calculator is different and it does not have that function. So how do I do it? So then you have this technique. Then for you, if you do not have this button, so you have to write that you know this already, that this is 2 point something minutes, something hours. Agree? Sir, I'm not able to get it. So you have to write Yes, sir. 20 divided by 60 because 1 hour has 60 minutes. So which Yeah. is 0.33. So then you will be writing 333 over here. Ah, Understood? Yes, sir. Thank you, sir. Got it? So Got calculate it. the average speed. Okay. Speed is equals to distance divided by time. 864 is the distance and the time is Yamna 2.333. So I can write Yamna. I can write 864 divided by 2.333. So 370.33. 370.33. So the answer till 3 significant figure is 370 kilometer per hour because it's a plane, it's not a bicycle. All right. Yamna, Yes। use the cosine rule to calculate the distance from the Geneva to Budapest. So we have to calculate this distance, which is, so here I'm gonna do it for you. Yamna, please be careful. So this is G, H. I'm extracting this triangle for you, okay? It's H. This is 67. This is 928. This is 864. And we are going to find small h. तो यमुना जरा बताएं मुझे h के small h के लिए फॉर्मूला बता दें जरा प्लीज. जी सर। h square is equals to b square plus g वैल्यूज square। बोलो जरा, वैल्यूज बोलो डायरेक्ट अब. अच्छा h square is equal to 864 square plus 928 928 square स्क्वायर प्लस 864 स्क्वायर मैंने पहले बोल ही दिया था, सॉरी, -2 minus 2 multiply by 864 and then 928 को multiply करेंगे cos h। cos of h क्या है? 67. So h is equals to square root of the right side. Do you agree with me or not? So yes sir। 928 स्क्वायर प्लस 8. आपने इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप एज इट इज लिखते रहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? yes sir।
cos of 67. So it's square root 928 square plus 864 square minus 2 bracket 928 864 bracket closed cos of 67 Muid bracket closed pressing equals. जी So सर my answer is small h is the answer, which is 990.50. So till 3 significant figure, this is 91. So the answer would be 991 kilometer is the answer. Understood यमुना बेटा, समझ आया? सर जी बचा. सर मैं पूछ रहा था कि जो फॉर्मूला है ना ये तो ये स्क्वायर वाला है ये शुरू में एच स्क्वायर है ना तो इस तरह फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना वो ए जी तो स्क्वायर इसीलिए मैं राइट साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ ना h को फाइंड करने के लिए. अच्छा फिर इज इक्वल टू के बाद इसीलिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि ये एक एच आ जाए मतलब स्क्वायर ना आए यस, हमें h चाहिए ना, हमें तो h स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना. सही अच्छा सही समझ got it? चलें आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं जरा. ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहा है, बेरिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तो यूज करते हैं जरा ये कॉन्सेप्ट भी. ठीक है. यमुना एंड एवरीबॉडी, दे से दैट द बेरिंग ऑफ द बुडापेस्ट from the Hamburg is 133. It means that look at B from H is 133. So let's plot that. Look at B from H. It means that this is 133. This is given in the question. Understood, Vadan? Okay. Find the bearing of H Hamburg from the Budapest. It means that look at H from B. From B. तो यमुना एट बी ड्रॉ नॉर्थ. बी पे मैं नॉर्थ बनाऊंगा. ठीक है. ओके. मुझे एच को देखना है. सो इसका मतलब है क्लॉकवाइज आई नीड दिस एंगल. अंडरस्टूड बेटा? Yes. यमुना सो बेटा आई नीड दिस एंगल फर्स्ट. मुझे पहले ये एंगल चाहिए. तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के कोइंटीरियर होते हैं 180 के बराबर होते हैं. सो आप ये निकालोगे दैट 180 x is equals to 180 minus 133. So x is equals to 180 minus 133 is 47 or 57? 47. So Yamna, I got this angle as 47. So my bearing would be 360 minus 47. Agree? So my bearing Yes. would be Sir, no. 360 minus 47. Ah, G, yes. what happened? Sorry, sir. I thought you said bearing was 47. Sorry. No. 360 minus 47. So 360 minus 40 is 320. 20 minus 7 would be 313. So that would be 313 degrees. Okay. Calculate the bearing of Budapest from the Geneva. So इसका मतलब है look at B from G. लवदान G पे नॉट ड्रॉ करो. ड्रॉ नॉर्थ एट G. तो G पे नॉर्थ ड्रॉ करना है. So let's draw north. So let's draw north with the blue color. So this is north. So Vadan, I can find out this angle with subtracting these two from 360. Do you agree with me or not? So 360 minus 67 minus 133. So the answer is 160. So beta, Arom, can I say that this is 20 degrees then? Yes, sir. Okay, so they are saying calculate the bearing of Budapest from Geneva means that look at B from G. So we have to look at B. So everybody please pay attention. Look at B. So look at B from G. So this would be the angle and I need this missing part. Agree, Sim? And I can get this part from the triangle जी which I सर. have. Agree? जी. And I can get this part from the triangle I have. So all I need is this diagram once again. So Yamna, we have this diagram already drawn above, but I'm going to draw one more time because I need this angle from this diagram. Okay. This is 67 and Yamna, we found this H as 991. Remember that? I want to find out this missing part, which is my Y.
because this is y and y plus 20 would be the answer. Agree, Yamna? So Yamna, Yes. you can see that we can apply sine rule because sine y would divided by 928, it should be equals to sine 67 divided by सर 991. जी बेटा, कोसाइन रूल में हमारे पास एक एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? हाँ एक एंगल ही लगेगा, एक से ज्यादा तो नहीं लग सकते. ठीक है. ओके, साइन y इज इक्वल टू यमुना 928 यहाँ पे जाके साइन 67 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 991 नीचे, और अब हम लेंगे साइन इनवर्स. क्या लेंगे? साइन इनवर्स. तो तभी देखो इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं क्योंकि यहाँ पे साइन रूल लगता था. ठीक है, सर ये तो अब यहाँ पे कोसाइन क्यों नहीं हो सकता था? किस नहीं हो सकता था ना बेटा, कोसाइन से हो सकता था लेकिन साइन रूल इज इजी. और किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, दोनों से हो सकता हाँ, है. दोनों से हो सकता है. ये किसी भी सर क्वेश्चन में कोसाइन रूल लग रहा हो तो आपने पहले साइन ट्राई करना है. इफ यू गेट फेल्ड फ्रॉम साइन तो तब आपने कोसाइन को इस्तेमाल करना है. ठीक है सर, साइन और कोसाइन में फर्क कैसे कर सकते हैं? बेटा, साइन और कोसाइन में ये फर्क होता है कि साइन रूल जो है ना वो 2 एंगल्स और 2 साइड्स पे लगता है. एग्री? अच्छा. देखो पहले जब हम लोग ये 991 फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पे हम साइन रूल लगा ही नहीं सकते थे. एग्री? क्योंकि एक एंगल है हमारे पास. जी. और यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास सिनेरियो बन रहा था, हमारे पास y के सामने 928 भी गिवन है और 991 भी गिवन है और 67 भी गिवन है. तो हमारे पास 4 में से 3 चीजें गिवन है, तो साइन इस्तेमाल करो. अब कैलकुलेटर की बारी है. साइन इनवर्स फ्रैक्शन 928 खुशी मल्टीप्लाई विद साइन 67, ब्रैकेट को क्लोज करना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 991, और अब मैं इस ब्रैकेट को करूंगा बंद. ओके मोहित, मेरे पास आंसर आया है 59.5 डिग्रीज. साइन एनी रूल की प्रॉब्लम? समझ नहीं आई. कौन से रूल की? साइन. मेरा बेटा जरा यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. कोई भी ये तो बहुत इजी है. एंगल डिवाइड बाय साइड, एंगल डिवाइड बाय साइड, बात खत्म. साइन सर y आप जरा डिवाइड बाय ऊपर जाए. 928, एक मिनट, सर साइन ऊपर y भी डिवाइडेड बाय 928, साइन 67 डिवाइडेड बाय 991. समझ आई? सर, तो कोसाइन और उसमें क्या फर्क? बेटा कोसाइन रूल आप देखो, वहां पे 3 साइड्स होती थी, 1 2 3. एग्री? सर तो नीचे भी 3 है. नहीं 3 किधर है बेटा, क्या हो गया आपको? ये देखिए, ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों तो एंगल है. तीसरी साइड हमने इस्तेमाल नहीं की, उसके सामने एंगल नहीं है हमारे पास. अच्छा सही है. देखो y की वैल्यू आ गई ना आपके पास. ठीक है, सर इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे? बस राउंड मैंने कर दिया ना. 59.5 आया हुआ कैलकुलेटर में, 54 आया, मैंने 5 लिख दिया है. तो बेरिंग क्या है मोहित? ऊपर क्वेश्चन में जाके देख लो. लुक एट बी फ्रॉम जी. तो ये आपके पास 20 प्लस वाई था, तो 20 प्लस वाई का मतलब है 20 प्लस 59. तो 20 प्लस 59.5, तो 20 प्लस 59 इज 69, 79.5 आ रही है. एग्री? तो आंसर लाइन पे क्या लिखेंगे यमुना? सर 079.5. वेरी गुड, गुड जॉब. सर आप जरा ऊपर जाए प्लीज. जी मेरा बेटा. सर ये 20 कैसे आया? ये जी पे 20 कैसे आया सर? बेटा आपको, आपने को इंटीरियर एंगल देखें, ये मेरी बात सुने, ये लाइन पैरेलल है इसके. एग्री और नॉट? यस सर. ये 160 समझ आया था, 360 दोनों को नहीं. एंगल एट अ पॉइंट 360 होता है ना. जी जी. तो 360 में से 133 और 67 निकाला मैंने, तो 160 आ गया. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर. दिस प्लस दिस इट शुड बी इक्वल्स टू 180. ये 180 के बराबर होने चाहिए. तो 180 में से ओ 160 निकाला सही तो सही 20 सही आया. सही सही है तो ये सर. हो, यहाँ पे थैंक यू. हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म. अंडरस्टूड? यस सर. थैंक यू सो मच. ऑलराइट बेटा, ये अरहम किसकी आईडी है? यस सर. बेटा अरहम आपकी आईडी है? जी जी. ओके चलें जी, प्लीज पे अटेंशन. दिस इज क्वेश्चन 34. बेटा आप क्लास नहीं ले सकते, ठीक है? सर क्लास के बाद बात कर लीजिएगा. क्या चीज बेटा? क्लास के बाद बात कर लीजिएगा. चलें ठीक. ओके टर्न ऑफ योर माइक प्लीज. ओके क्वेश्चन 13 प्लीज.
Question 13 says that calculate angle ACB. So angle ACB, so AC and B. So Yamna, this is the angle in front of you. आपको नजर आ रहा है बेटा? जी सर। यमुना, हमने क्या करना है कि आपने इस ट्राइंगल को पेपर में बाहर निकालना है, ठीक है, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जी ए सर। ई एंड दिस इज सर सी। ए सी बी नहीं है, क्या कह रहे हैं? बी है अच्छा बी। हाँ, ए सी बी है, सॉरी माय बैड। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर इट। ओके, इट्स ए सी बी, सो ए सी एंड दिस इज बी, so I am going to extract this triangle outside with the same names A C B। अब यमुना प्लीज पे अटेंशन बेटा, यहाँ पे हम एंगल को सब्जेक्ट बनाएंगे आपके सामने और अभी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? जी सर। रेडी? ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, एग्जामिनर इज आस्किंग एंगल C। तो यमुना, कैन आई से दैट दिस इज स्मॉल c, एंगल B is facing यस सर। small b and this is small a, ठीक है बेटा? बेटा जी सर। यमुना, स्मॉल c के लिए जब मैं कोसाइन रूल बनाता हूं तो वो होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ c। एग्री और नॉट? यस सर। I want to make this c cos c the subject, okay? जी सर। तो a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके b स्क्वायर भी माइनस होगा बेटा। माइनस 2ab जो है वो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ये क्लियर हो गई बात आपको अब के नहीं? जी सर। जी चल क्लियर है। शुक्र है, चले शुक्र है। एक मिनट यार, हाँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे देख लें बेटा कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक पुट वैल्यूज नाउ। सो यमुना, cos c it is equals to c square is 11 square minus a square is 4 square minus b square is 13 square divided by -2, और a की वैल्यू है बेटा 4 और b की उसकी वैल्यू है 13। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब बेटा आपने cos इनवर्स लेना है। क्या लेना है? कॉस इनवर्स। P is equals to cos इनवर्स ऑफ द राइट साइड का cos इनवर्स ले लेंगे बेटा। कैलकुलेटर पे करें सब प्लीज। इंटू 13। तो बेटा एंगल C क्या आ रहा है, जरा कोई बच्चा बता दे। लालूना, हमजा, अमजद, बेटा आंसर क्या आ रहा है जरा बताया करें, कैलकुलेटर लेके बैठा करें प्लीज। सर 52.0 52.02। 02। ओके, तो द आंसर इज 52.0। बेटा क्या ये आंसर ठीक है ऑल ऑफ यू? आलीन? जी सर यही आ रहा है। अच्छा जी, वंस यू हैव द आंसर आलीन, तो आपने ये आंसर क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है? जी सर। Okay, calculate angle ACD। Angle ACD is this angle। सो मुईद, अब ये वाला ट्राइंगल बाहर निकालना है आपने, ठीक है? ऐसा ही बनाना जैसे क्वेश्चन में बना हो, ठीक है? A D and this is C, this is 8 सेंटीमीटर। उमर, this is 13। उमर, ये एंगल है 80 और उमर मुझे ये एंगल यस फाइंड सर। आउट करना है, ठीक है? उमर, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे साइन रूल लगेगा कि कोसाइन रूल लगेगा? सर इधर कोसाइन। देखें, सोच के थोड़ा बताया करें, हवा में बात ना करें थोड़ा सा। आपके तीन पास है, साइन तीन रूल में, साइड है। देखें जी, आपके पास साइन रूल में ये एंगल है और इस एंगल के सामने साइड भी है। एग्री? अच्छा, ऐसे पता लगता है सर कि सामने तो जो और एंगल क्या, हो। और कैसे पता लगता है बेटा? नींद तो नहीं आएगी हमें, ख्वाब आएगा, कैसे पता लगेगा? अंडरस्टूड? और उमर, ये 8 लिखा है तो 8 के सामने एंगल निकाल सकता हूं ना साइन रूल से? यस सर। तो आई विल फाइंड एंगल ए और आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ द एंगल्स फ्रॉम 180 टू फाइंड सी। सो फाइंडिंग एंगल ए, सो एंगल ए फाइंड कर लेते हैं। सो एंगल ए हो जाएगा उमर साइन ए डिवाइडेड बाय 8
इज इक्वल टू साइन 80 डिवाइडेड बाय 13। उमर समझ आई अब? यस सर आ गई अब। तो 8 इधर जाएगा, साइन 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन इनवर्स ले लेंगे बस जो राइट ऑपोजिट साइड। साइड होंगे वो लिखना है उसके सामने। बिल्कुल, साइड ऑपोजिट साइड के सामने एंगल, ठीक है। 8 इंटू साइन 80 divided by 13. So angle A is, what is angle A बेटा? साइन इनवर्स ले लें, shift and sin 37.30. 37 30. तो हम 3 लिख देते हैं। We want to find out angle C because the angle C is the requirement. So angle C would be equals to, एक मिनट यार, angle C would be equals to 180 minus 80 minus 37.3। तो आंसर कितना आता है बेटा? 62.7. It is 62.7 degrees. So this is the answer for this part. जी समझ आया बेटा सबको? आरोम अंडरस्टूड? Yes, sir. All right. लालूना अंडरस्टूड और नॉट बच्चा? अब्दुल्ला बेटा समझ आइए? जी सर। आयला, खुशी? Yes, sir. All right. Proceeding. Calculate the area of the quadrilateral. Okay. Area of the quadrilateral means area of two triangles. So area of the quadrilateral means area of two triangles, and you have these two triangles available in front of you. So first of all, area would be area of the two triangles. तो अभी मैं साथ में ये भी explain कर देता हूँ बेटा। एक triangle है ये वाला, ठीक है यमुना बेटा, ACB, इसकी sides हैं 4, 13 and 11, और हमने एंगल C निकाल लिया यमुना और वो आया था 52, ठीक है। तो इस ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है यमुना, मल्टीप्लाई sir. विद साइन इंक्लूडेड। आपने साइन इंक्लूडेड लेना है। तो आसान तरीका क्या है, ये सर्कल याद करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड, ठीक है। दोनों साइड्स भी हैं और उनके दरमियान का एंगल भी है, अंडरस्टूड। सो 13 into 4 into sine 52, this is the area of this triangle. So 0.5 मतलब 1.5 की जगह 1/2 की जगह पे लिखा है, multiply with 13, multiply with 4, multiply with sine of 52, closing bracket 52. So Vedant, the area is 20.48. 20.48, this is A1. Let's find out A2, which is another triangle, Sir? which is triangle ABC. जी यमुना? इसमें हमेशा साइन होगा ना, जो आपने हमेशा फॉर्मूला साइन लेके होगा एरिया साइन। में, एरिया में हाँ बिल्कुल हमेशा साइन होगा। ADC बेटा ये 8 है, ये 13 है, उमर ये 80 है। आपने एंगल C अभी फाइंड किया है उमर, विच इज 62.7। एग्री? तो देखो उमर यहाँ पे भी वो सर्कल बन रहा है ना, यस सर बन रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 8 और दरमियान के एंगल का साइन ले लेना, ठीक है। सर तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स में 11 नहीं आ सकता? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे, ये ऊपर वाले में 3 मल्टीप्लाई बाय 4। देखो 11 इंटू 4 नहीं ले सकता, मेरे पास एंगल B नहीं है। क्या मतलब समझ सर आई? इसमें? एंगल B साइन इंक्लूडेड, इन दोनों के दरमियान में एंगल होना चाहिए। 11 और 4 के दरमियान वाला एंगल आपके पास नहीं है। अच्छा अच्छा, सही सही। साइन इंक्लूडेड का यही मतलब है ना बेटा इंग्लिश में, मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ 62.7। क्यों तुम रोस्टिंग करवाते हो अपनी? द आंसर इज 40। रोशनिंग भी सर ये? हाँ जी 46.2। अच्छा इधर एक शैतान, टोटल एरिया कितना होगा मुईद? A1 और A2 को ऐड करो, 20.48 प्लस 46.2, तो इन दोनों का ऐड कर लो। 20.48 इस आंसर के साथ ऐड किया है तो 66.68 आ रहा है। आरोम, द आंसर वुड बी 66.68। नो, फाइनल आंसर क्या लिखूं? अच्छा राउंड ऑफ करके तो 66.7 होगा ना सर? Yes, सर it ये is three 66। significant, जी जी ओके। till 3 significant figure. Understood everybody or not? यस। ओए मजा आ गया यार आज तो। रामीन अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा? क्लास में आवाज आ रही थी? तैमूर
वालेकुम अस्सलाम सर। नहीं सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया 7:40 पे, तो मैं क्यों लेट खैर हो बेटा, क्या हुआ? सर आज वो मैं एक अकेडमी गई थी, तो उधर मैम ने 2 घंटे बिठाए रखा। मैंने कह भी नहीं कि मुझे आगे अकेडमी जाने के लिए, नहीं ये काम करके जाओ, तो बस फिर इसलिए। चलें ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे हम लोग। समझ ओके आई है सर। बच्चा? जी जी सर समझ। कोशिश करें कि अपने नॉन कैलकुलेटर बुकलेट IGCSE स्टूडेंट्स प्रैक्टिस पेपर 4 एंड O लेवल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस पेपर 2, आपको पेपर 2 में साइन रूल को साइन रूल मिलेगा। अब आपका लेवल होना चाहिए कि आप साइन रूल और कोसाइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री का सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है, जी सर। कल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हाफिज और सर। कल ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा बेटा, दोनों की एक साथ। चलो भाई जाओ, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह सर हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। सर सर हेलो सर। हाँ साइन बोल। सॉरी सर, मगर वो एक चीज़ क्लियर करनी थी। हाँ हाँ बोले बोले, मेरे एक्चुअली वो आईपैड से मैंने क्लास बंद कर दी थी। हाँ बोले। अम, ओहो, उसके लिए ड्राइंग करनी पड़ेगी। अच्छा एक मिनट सब्र करो यार, मेरा अभी ये जरा आईपैड थोड़ा स्टक कर गया। खैर है सर, बस ठीक है, कल कर लेंगे। ओके चलो, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।